السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ فلک نما پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ قتل کیس کا پتہ چلا ہے۔ یہ معاملہ 9 اکتوبر کو شیو مندر کے قریب امجد اللہ باغ فاطمہ نگر فلک نما میں پیش آیا تھا اور شکایت کنندہ شیخ ارباز ساکن امجد اللہ باغ فلک نما حیدرآباد نے 10 کو اطلاع دی تھی۔ 3 سال قبل ملزم اور مقتول پڑوسی کے گھروں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ملزم نے مقتول کی بیوی سے فون پر چٹ شروع کر دی۔ متوفی دوسرے گھر میں منتقل ہو گیا تھا۔ 1 سال پہلے اس نے اسے فون کرنا شروع کر دیا۔ متوفی کو اس بات کا علم ہوا اور ان کے درمیان معمولی سا جھگڑا ہوا اور انہوں نے بزرگوں اور اہل خانے سے مل کر معاملہ طے کر لیا۔ 10 روز قبل متوفی کی اس بات پر بیوی سے لڑائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ملزم مقتول کے بہنوئی سبرام کے گھر کے قریب جانے لگا۔ شام 9 بجے ملزم اور متوفی کے گھر شیو مندر امجد اللہ باغ فاطمہ نگر میں اس مسئلے پر بات کرنے آئے، جہاں متوفی اپنے بھائیوں اور ملزمان کے ساتھ تھا۔ مسئلے پر بات چیت کرتے ہوئے ملزم نے اچانک کمر سے چھری نکال کر ساجد کے پیٹ کے بائیں جانب اور بائیں ہاتھ پر قتل کرنے کی نیت سے وار کیا۔ 9 اکتوبر کو فلک نما پی ایس کے تحت جو مرڈر ہوا ہے، محمد ساجد نام کے شخص کا جو مرڈر ہوا ہے، وہ کیس میں 12 تاریخ کے صبح ہم نے اس کے جو مرڈر جو اکیوزڈ ہے اس کو محمد صدیق، اس کو 12 تاریخ کے صبح فاطمہ نگر میں اریسٹ کیا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں اس دن جو 9 تاریخ کو جو مرڈر ہوا ہے، جو ساجد کا بھائی ارباز کے نام سے کمپلینٹ لے کے ایف آئی آر کیا گیا ہے۔ اس میں تحقیقات کر کے آج 12 تاریخ کے صبح اس کو اپریہنڈ کیا گیا اور سبسیکوینٹلی ان کو کورٹ کو بھیج دیے۔ تو مرڈر کا وجہ یہ ہے کہ جو مر گیا ہے ساجد اور یہ جو صدیق آمنے سامنے رہتے تھے 3 سال سے، تو اس سلسلے میں جو ڈیسیزڈ کی وائف سے اور اکیوزڈ کو فون چیٹنگ تھی اور فون میں باتیں چل رہی تھی، تو یہ دیکھ کے دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے ایشو میں دونوں بیٹھ کے ایلڈرز کے سامنے کمپرومائز ہو گئے اور محمد ساجد وہاں سے گھر خالی کر کے دور چلے۔ لیکن ساجد کو اپنے بیوی پہ اور بھی شک تھا، تو 10 دن پہلے ان اپنے بیوی سے اس بارے میں جھگڑا کیا تو بیوی اپنے خود کے بھائی کے گھر کو سبرام کے گھر چلے گئی۔ عادل آباد کانگریس پارٹی اسمبلی انچارج سرینیواس ریڈی نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عادل آباد رکن اسمبلی پائل شنکر ایک ڈکٹیٹر کی طرح برتاؤ کر رہے اور عادل آباد کو اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے ایک زمیندار کی طرح محسوس کر رہے۔ سرینیواس ریڈی نے اتوار کے روز عادل آباد شہر مستقل میں واقع اپنے کیمپ آفس میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے سرکاری طور پر منعقد دسہرہ تہوار کی تقریبات کے دعوے نامے میں عادل آباد کے پہلے شہری میونسپل چیئرمین جوگو پریمندر اور سابق وزیر جوگو رمنا اور ایم ایل اے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے والے سرینیواس ریڈی کے نام کے بغیر دسہرہ کی تقریبات کے انعقاد پر اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے کہا رکن اسمبلی پائل شنکر کے ایک طرفہ فیصلے اچھے کلچر کو نظر انداز کر رہے اور یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ عہدہ مستقل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اور میونسپل چیئرمین کو تقریبات میں مدعو نہ کر کے منور کاپو طبقے کی توہین کی گئی ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا منور کپولا آپ کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ دسہرہ جیسی بڑی تقریبات میں ان کے طبقے کو نظر انداز کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹیاں ہندو تہوار کی تقریبات کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھتی ہے اور سب کو ساتھ لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے پائل شنکر پر الزام لگایا ہے کہ اس کے ذریعے عادل آباد میں زہریلا کلچر پھیلایا جا رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پائل شنکر کے ساتھ رہنے والوں کو پائل شنکر کی خود غرضی کو سمجھ لینا چاہیے۔ انہوں نے رام لیلا میدان میں خواتین کو بتکما کھیلنے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ایم ایل اے کے عہدے پر قبضہ کر کے کروڑوں روپے کما رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سناتن ہندو اتسو اور سمیتی کے زیر اہتمام ڈائٹ گراؤنڈ میں دسہرہ کی تقریبات شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ اگر آپ وہاں موجود لوگوں کا رد عمل دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنی کامیاب رہی۔ اس میڈیا کانفرنس میں اربن کانگریس پارٹی ٹاؤن صدر ناگیش، INTUC کے ضلع صدر نرس
सिंह, कांग्रेस पार्टी सदर खवातीन कुटला आशम्मा, काउंसलर कला श्रीनिवास और बंदारी सतेश, सांडा नरसिंह, ओला वेंकन्ना, लीडरान पोडी किशन, एम.ए. शकील, डोगडी राजेश्वर, मोहम्मद खयूम, रामुलू, माने शंकर, मंचला मालया, राहुला स्वमना, राजा लिंगया, सैयद सज्जाद अली, अब्दुल रशीद, कयाथम, शिवा प्रसाद रेड्डी, जगदीश रेड्डी, मंकू नारायण रेड्डी, विमन नाथम, रमेश, अमजद खान, लक्ष्मण, सोनी राव, महाबकाश, खातून रहनुमा सोनिया मंथानी, भावना सिंह, गुंटूबाई अफरोज के अलावा दीकर मौजूद रहे। దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా జరిగినటువంటి ఉత్సవాల్లో పాయల్ శంకర్ ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఆదిలాబాద్కు అతనే గుత్తేదారు అన్నట్టుగా, ఆదిలాబాద్ ప్రాంతం అంతా పాయల్ శంకర్ జాగీర్ అన్నట్టుగా కంటెస్టెడ్ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లు అయినటువంటి, అందులోనూ మాజీ మంత్రి 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేసినటువంటి జోగు రామన్న గారి పేరు పెట్టలేదు ఆహ్వానించే వాళ్ళ, అలాగే నా పేరు కూడా పెట్టలేదు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి జోగు ప్రేమేందర్ గారి పేరు కూడా పెట్టలేదు. పాయల్ శంకర్ గుర్తుపెట్టుకో, అధికారం శాశ్వతం కాదు, కనీస సంస్కారం సభ్యత శాశ్వతం. మున్నూరు కాపు సోదరులందరూ కూడా నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, పాయల్ శంకరే అసలైనటువంటి మున్నూరు కాపులకు ద్రోహి. పాయల్ శంకరే మున్నూరు కాపు బిడ్డల్ని ప్రతినిత్యం అవమానించేటువంటి ఒక కరుడు కట్టినటువంటి రాక్షసుడు పాయల్ శంకర్. మున్నూరు కాపుల ఓట్లు, సోదరుల ఓట్లు కావాలి కానీ పాయల్ శంకర్ కు మున్నూరు కాపు బిడ్డలకు గౌరవం, కనీసమైనటువంటి గౌరవం కూడా ఇవ్వనటువంటి ఒక ద్రోహి పాయల్ శంకర్. साबिक वजीर व बीआरएस पार्टी जिला सदर ने कहा है कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की तरफ से अपनाई गई अवाम मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ अपोजिशन पार्टी के तौर पर लड़ने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने इतवार के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में वाक़ बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा पार्टी के हल्क़ा सतह के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद मरकजी और रियासती हुकूमत की तरफ से अवाम मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ खड़े रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत किसान और आम आवाम को झूठे वादों के साथ धोखा दिया, इसकी फील्ड सतह पर तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी वर्किंग सदर के.टी. रामा राव इस माह की 24 तारीख बरोज़ जुमेरात को आदिलाबाद जिला मुस्तक़र में कांग्रेस हुकूमत के मुखालिफ अवाम पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुनक़िद होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से चलाई गई पॉलिसी अवाम के मसाइल, किसानों को दी गई यकीन दहानी और दीगर मसाइल पर KTR मीटिंग में तबादला ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नाअहल हुक्मरानी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस असेंबली इंतखाबात के दौरान धोखाधड़ी के वादे करके इख्तिदार में आई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि तमाम किसानों का कर्ज माफ किया जाए और इलेक्शन में किए गए हर वादे को पूरा किया जाए। उन्होंने बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो इस माह की 24 तारीख को KT रामा राव की क़ियादत में जिला मुस्तक़र में होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब बनाए। ఇప్పుడే కేటీఆర్ గారితో మాట్లాడాం. 24 తారీఖు నాడు కేటీఆర్ గారి సమావేశం రైతు రుణాలపైన, రైతు భరోసా పైన, 6 గ్యారెంటీల యొక్క పథకాలను చట్టబద్ధత చేస్తామని చెప్పి ఈరోజు అధర్మంగా, అక్రమంగా, అవినీతికి పాల్పడుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని ఆదిలాబాద్ నుంచే హెచ్చరిక చేద్దామని చెప్పి మరి ఇలా 420 హామీలు 420 హామీలు ఇచ్చి ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని మోసం చేసింది. కాబట్టి మరి రేపు 24 తారీఖు నాడు మన KT రామారావు గారు, మన గౌరవ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఆదిలాబాద్ నుంచే మొట్టమొదటి ఈ 420 హామీల పైన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది రుణమాఫీ పైన, రైతు భరోసా పైన 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చినటువంటి అత్తా కోడలకు పెన్షన్ కానీ,
भैंसा में दुर्गा मूर्तियों का निमज्जन जुलूस जारी है, जिसका आगाज शहर के पुराना बाजार और आईबी गेस्ट हाउस के रूबरू वाक़े दुर्गा मूर्तियों की पूजा से सुबह के औकात में एमएलए पवार रामाराव पटेल, काउंसलर टी विजय के अलावा जिला एसपी जानकी शर्मिला और भैंसा एसपी अविनाश कुमार के अलावा दीगर सियासी कायदीन व ओहदेदारों ने किया। दुर्गा जुलूस के दौरान जुलूसी हाथों में जाफरानी परचम और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर थामे रक्स करते देखे गए। मूर्तियों का निमज्जन वागू प्रोजेक्ट में किया गया। जुलूस के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को आर्जी तौर पर कपड़ों से ढांकते हुए पंजे शाह सह राह के अलावा मुस्लिम इलाकों की लकड़ियों के जरिए नाकाबंदी की गई और जिला निर्मल एसपी जानकी शर्मिला की निगरानी में 250 से ज्यादा पुलिस अमले को बंदोबस्त में तैनात किया गया और शहर के कारोबारी तिजारती इदारों को पुलिस ने दोपहर के औकात में बंद करवा दिया। దీనికి కావాల్సిన ఏర్పాటు కూడా చేశాము. దగ్గర 200 పోలీస్ పర్సన్స్ చేశాము. అలాగే టికెట్ వేసాము, డైవర్షన్ చేసాము. ఇవన్నీ మంచిగా సత్పరిచి వచ్చే వాళ్ళు చేశారు. ఇక్కడ నిమజ్జనం ఆనవాళ్ళు చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరికి చేసి वही ताकत है जो हुक्काम के पास है, चाहे वो उनकी अपनी हुकूमत हो या उनसे गलती हो जाए। बदकमा प्रोग्राम के दौरान सूती आलूदगी के खिलाफ वर्जी पर हैदराबाद के मेयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी के मेयर कतवाल विजय लक्ष्मी के खिलाफ मुबैना तौर पर सूती आलूदगी के उसूलों के खिलाफ वर्जी करते हुए बदकम्मा की तकरीबात के लिए ज्यादा डिसेबल म्यूजिक की इजाजत देने का मुकदमा दर्ज किया है। अल्लाह ताला की मुबारक रहनुमाई और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत की अजीम तालीमात के तहत आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने आज कुलीपुरा में अपनी सालाना दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस ने मुअज़्ज़िज़ मजहबी स्कॉलर्स, ज़ाकिरीन और पूरे खित्ते के इस्लामिक स्टडीज़ के इदारों के तलबा को इकट्ठा किया। इल्म और रूहानी तरक्की की तलाश में मुत्तहिद हुए। AJKS के सदर मौलवी इमरान अंसारी ने कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए एसोसिएशन के महत्वाकांक्षी मंसूबों के खाका पेश करते हुए एक बसीरत तंगेज़ तकरीर की। इंसानियत की खिदमत और अल्लाह खुशनौदी हासिल करने के जज्बे के तहत AJKS का मकसद वालिदैन के लिए ओल्ड एज होम कायम करना है, जिसमें बच्चे नहीं हैं या बैरून मुल्क मुकीम हैं। उनकी इज्जत और देखभाल को यकीनी बनाना है। हम यतीम बच्चों को जामे सहूलियात और मुफ्त तालीम फराहम करेंगे जब तक कि वो खुद कफ़िल नहीं हो जाते। उन्हें मुआशरे में मुस्बित किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाते हैं। मौलवी ने तलबा को बाइख्तियार बनाने के लिए AJKS अज़म पर जोर देते हुए कहा है कि हम तालिब इल्मों को मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों के लिए माली मदद की ज़रूरत है और इस्लामी और पेशा वाराना तालीम के लिए ईरान और नजफ में लड़कियों के लिए आला तालीम के मौक़े फराहम किए गए हैं। मौलवी अंसारी ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा है कि प्यारे तलबा, आप हमारी कौम का मुस्तकबिल है। अहले बैत इमाम ज़माना और हमारे मोहतरम मीराजी की अजीम तालीमात की तकलीद करे, इल्म, हिकमत और अखलाक के लिए जदोजहद करे, उम्दगी और हमारी कम्युनिटी की बेहतरीन के लिए अनथक मेहनत करे। अपने खिताब के अख्तिताम पर मौलवी अंसारी ने आजिज़ी के साथ कहा है कि मैं अपनी कोशिशों में सिर्फ हज़रत सहरा और इमाम ज़माना के बरकत का तालिब हूँ और कुरान और अहले बैत की हिदायत इलाही की दावत देता हूँ। कॉन्फ्रेंस ने उलमाए तलबा के लिए बामायने बातचीत में मशगूल होने, इत्तेहाद, ताउन और इज्तिमाई तरक्की के जज्बे को फरोग़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया है। हमारी सालाना जो तालीमी कॉन्फ्रेंस है आज इस इलाके में हो रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए बच्चे हमारे फ्यूचर हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे फ्यूचर्स हैं, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम इनको अच्छी दिशा देते हैं, अगर हम इनको सही और गलत की पूरी तरह से पहचान देते हैं और इनको इनकी जिम्मेदारियों से बाखबर करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा ड्रग्स पर इन्होंने एक मकाला बनाया, बाकी होम लिविंग पर, सोसाइटी पर वगैरह, मुझे लगता है कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा किए जाएँ, ये विजुअली जब आप देखते हैं ना, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा असरअंदाज होता है बानिस्बत उसके कि जो आप लिख के इनको भेजते हैं। आई थिंक शोइंग इन फ्रंट ऑफ, जब आप लोगों के सामने ये ऐसे छोटे छोटे ये प्रोग्राम्स करते हैं तो ये असरअंदाज होते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी और भी प्रोग्राम्स हो और लोगों को बाखबर किया जाए।
CPI के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी एन बाला मलेश, CPI रियासती सेक्रेटरीट के अरकान ET नरसिम्हा, VS बोस, CPI रियासती वर्किंग कमेटी के अरकान रविंद्र चारी, CPI हैदराबाद के जिला सेक्रेटरी छाया देवी, CPI राष्ट्र समिति के अरकान उमा महेश, स्टॉलन मारोपाका, अनिल कुमार चंदू नायक ने जिस्मानी तौर पर शिरकत की। प्रोफेसर JN साई बाबा, CPI हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर कुंपल्ली श्रीनिवास, AIIF के रियासती नायब सदर श्रीमान सत्य प्रसाद, AISF के कायदीन अनिल और दीगर ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। CPI के रियासती सेक्रेटरी MLA कोनैनी संबशिवा राव ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर और इंसानी हुकूक की तहरीक के रहनुमा प्रोफेसर JN साई बाबा और उनके अरकान खानदान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी वफात मुआशरे का बहुत बड़ा नुकसान है। साई बाबा की मौत की खबर सुनने के बाद संबशिवा राव इतवार की शाम उनकी रिहाइश गाह गए और प्रोफेसर JN साई बाबा की अहलिया व सुनता और खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की। CPI राष्ट्र समिति के अरकान कालाकोंडा कुंताया और मारूपाका अनिल, TPF के लीडर रवि चंद्र भी साई बाबा के खानदान के अफराद का एहतराम नहीं करते। इस मौके पर बात करते हुए कोनैनी ने कहा है कि अगर साई बाबा का इंतकाल हो जाए तो भी उनकी रूह समाज को छू लेगी। कहा जाता है कि साई बाबा को जिस्मानी माजूरी के बावजूद मुआशरे की मुकम्मल समझ थी। चैतन्या ने सियासी तौर पर बहुत से लोगों की खिदमत की। कोनैनी राव ने कहा है कि प्रोफेसर साई बाबा को 8 मार्च 2024 को नाग जेल से रिहा किया गया था, जब मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें माओ नवाजों के केस में बरी कर दिया था। उन्होंने कहा है कि साई बाबा के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाना और समाज के लिए सवाल पैदा करना और काम करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाना नाइंसाफी है। CPI के रियासती सेक्रेटरी कोनैनी संबशिवा राव ने अपने गम का इजहार किया। प्रोफेसर साई बाबा को कैद के दौरान मीठा पानी पीने का मौका भी नहीं दिया गया और उनकी मौत इंतहाई अफसोसनाक हुई है। उनकी मौत के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें कई साल जेल में अजियतें दी गई। आखिर में उन्होंने कहा है कि उन्हें ताज़ा पानी पीने का मौका भी नहीं दिया गया। साई बाबा को जमानत भी मिल गई तो उसे लंगड़े बनाकर गिरफ्तार करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि राव की सूरत हाल भी ऐसी ही है और मरकजी हुकूमत पूछगछ करने वालों को गिरफ्तार करने के नाम पर जिस्मानी और जहनी तौर पर जबर करने की कोशिश कर रही। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि बाएं बाजू के लोग को खौफजदा करने की कोशिशें की गई है। इसके एक हिस्से के तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक माओ नवाजों को खत्म करने की वार्निंग के पीछे क्या है वो एक के बाद दीगर रियासतों को दे रहे हैं। ప్రొఫెసర్ సాయిబాబు గారు మరణించడం చాలా దురదృష్టకరం. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మొత్తం ప్రభుత్వాలే ఆయన మరణానికి బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. అనేక సంవత్సరాలు ఆయన్ని నరకయాతన జైల్లో ఉండి జైల్లో మధ్య విధంగా నరకయాతన చూపెట్టారు ఆయనకి. ఆఖరికి మంచినీళ్ళు తాగే అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా, స్ట్రా పట్టుకోలేని వ్యక్తిని కూడా ఆ విధంగా అటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా కల్పించకుండా నానా అరాచకంగా ఆయన్ని చేయటం జరిగింది. ఆయనకి బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత కూడా బయటికి రాకుండా అనేక సార్లు నిర్బంధించారు. ఇప్పుడు వరవరరావు గారి పరిస్థితి కూడా గతే హౌస్ అరెస్ట్ పేరుతో ఉంచినప్పుడు కూడా ఆ విధంగా వృద్ధుల్ని, పెద్దవాళ్ళని శారీరకంగా బలహీనుల్ని ఇటువంటి వాళ్ళని చేయటం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఉద్యమాలని ప్రశ్నించే వాళ్ళని అణిచివేయాలనేటువంటి ఒక వాళ్ళ రాక్షస ప్రవృత్తి అది. ఆ క్రమంలో యూత్ని కానీ ఇంకెవరిని కానీ లెఫ్ట్ అంటేనే భయపడే విధంగా చేయాలనేటువంటి అరాచకత్వం అందులో ఉంది. అందులో భాగంగానే ఇటీవల అమిత్ షా కూడా వరుస స్టేట్మెంట్ ఇస్తా ఉన్నారు. 26 నాటికి మావోయిస్టుని తొలగొట్టేస్తామని. ఆ పేరుతోనే మొన్న 31 మందిని, అంతకుముందు 26 మందిని, టోటల్గా ఈ ఒక సంవత్సరంలోనే దాదాపు 200 మందిని ఒక ఛత్తీస్గఢ్లోని వాళ్ళని హతం చేయటం జరిగింది. श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर ने कहा है कि देहात में तरक्की की ख्वाहिश करते हुए देही इलाकों की तरक्की के लिए गांव मेला पंचायत हफ्तों का इनेकाद किया जा रहा। देही मंडल के कस्तुफा, पेटा, सिंगापुरम और इसका बैरी और दीगर इलाकों में पीर को सीसी सड़कों की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। बाद में MLA शंकर ने कहा है कि वो 14 से 20 अक्टूबर तक 7 रोजा हफ्तेवार मेले का एहतमाम करेंगे। इसकी वजाहत की गई। हमने साल में कम से कम 100 दिन देहात में रहने वाले खानदानों
नौजवानों के लिए उजरत का रोजगार और बेहतर जरिया माश फराहम किया। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने गांव पंचायत के पस मंजर में 15वें मालियाती यूनियन के फंड्स जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि YCP के गुज़िश्ता 5 साल के दौरान और दौरे हुकूमत में देही इलाकों को कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला और वो अडवाना की सूरत हाल तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि देहातों को पीने के पानी, बिजली और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे फराहम नहीं किए गए, इसलिए लोगों को संगीन हालात का सामना करना है। MLA शंकर ने वजाहत की है कि गांव के साबिका शान को लाने के लिए गांव के त्यौहार के नाम पर प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। बताया गया है कि हल्का श्रीकाकुलम के ताल्लुक से 32 करोड़ रुपए से सड़कों, नहरों और दीगर कामों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को होने वाले ग्राम सभा में जिन कामों की निशानदही की गई थी उनको तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। ఈ రోజు పల్లి పండగ ప్రారంభోత్సవం కార్యక్రమం సందర్భంగా శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం శ్రీకాకుళం రూరల్ మండలం సింగుపురం గ్రామంలో ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీకాకుళం మండలం ఎంపీడీఓ గారు అలాగే రాష్ట్ర పట్టణాభివృద్ధి కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి సేర్ రామయ్య గారు అలాగే ఈ గ్రామ సర్పంచ్ గుండా ఆదిత్యనాయుడు గారు అలాగే మాజీ సర్పంచ్ అయినటువంటి గుండ మోహన్ రావు గారు అలాగే ఎంపీటీసీ పంగ సత్యనారాయణ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కుంచాల ఆదినారాయణ గారు మాజీ మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షులైనటువంటి చైర్మన్ అయినటువంటి మోకల్ల శ్రీనివాస్ గారు అలాగే పంగ రమేష్ గారు ఇతర గ్రామ పెద్దలు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వార్డు సభ్యులు మహిళలు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు। వారందరికి కూడా నేను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం ప్రతిష్టాత్మకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు కనుక వీటికి పెద్ద ఎత్తున గ్రామంలో ఉన్న అందరు పెద్దలు సహకరించి మన గ్రామాభివృద్ధికి తోడ్పాటు పడాలని నేను కోరుకుంటూ ఈ సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అలాగే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి నేను హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ వారికి నేను నమస్కరిస్తూ ఇటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమం ప్రారంభించినందుకు మరొకసారి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రజలందరికీ నా యొక్క అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ అందరి వద్ద సెలవు తీసుకుంటాను। నమస్కారం। मेलावरम के कानून साज श्री वसंता वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने कहा है कि इज्जत माँ वज़ीर-ए-आला जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में महाकूटमी हुकूमत देहात की तरक्की को आला तरजीह दे रही रेड्डी गुडम मंडल के इनवरापेटा में पीर को एक गांव मेले का इनेकाद किया गया। MLA कृष्णा प्रसाद ने इंकशाफ किया है कि NREGS फंड से इस गांव में 604 मीटर लंबी 4 सड़कों की तामीर के लिए 29.20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ये बात सामने आई है कि आज से पूरे हल्के में गांव मेला पंचायत हफ्ते का इनेकाद किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि मखलूत हुकूमत ने AP में तरक्याती कामों का आगाज किया। CM के साथ नायब वज़ीर-ए-आला जनाब पवन कल्याण ने कहा है कि देही इलाकों और देहातों की तरक्की खुसूसी तवज्जो दी गई है। हमने फलाही रियासत के किरदार से मुआशरे के हर तबके को इंसाफ दिया। हमने सिर्फ फूड डोनर किसानों के साथ शुरू किया। हमने किसानों को 12,000 रुपए मरकजी हुकूमत से 6,000 महाराष्ट्र हुकूमत से देने का फैसला किया है। हमने रियासत में बुजुर्गों की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर वेशरी योजना को नाफिज किया। प्यारी बहनें एक मंसूबा लेकर आए। अपने भाइयों के लिए चीफ मिनिस्टर यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम लेकर आए हैं। हमने तामीराती कारकुनों को मदद फराहम करने के लिए एक खुसूसी फलाही स्कीम शुरू की। हमने फैसला किया है कि उन तमाम स्कीमों के फवायद मुस्तफ़ीन के बैंक अकाउंट में बराह रास्त जमा कराए जाए। अवामी फलाही फंड उनका हक है। वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा है कि हमने लोगों की फलाह बहबूद के जज्बे के तहत इस फंड को उन तक पहुँचाने और पसमानदा अफराद को इंसाफ के दायरे में लाने को तरजीह दी है। वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे ने पाशवानी में तकरीब 2,000 और करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भूमि पूजन किया है। वो पाशवानी मैदान में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। MLA करपाल तमाने, MLA आशीष जायसवाल और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद रहे। उन तरक्याती कामों में 17 पुर अस्पा इरिगेशन स्कीम, सड़कें, डैम, खंजदी पुरक केनाल, साई और न्यूरोला पल्ली और इसके अलावा वाघोपल मानसर मोहली सड़कों को चौड़ा और सीमेंट करना, रामटेक बस स्टैंड की तज़यीन व आराइश, रामटेक पंचायती कमेटी
ایڈمنسٹریشن اور دیگر شامل ہے۔ اس کے علاوہ تحصیل آفس میں نئی عمارت وغیرہ شامل کرنا بھی شامل کیا گیا ہے۔ پچھلے 2.5 سالوں میں کبھی بھی حکومت نے عام لوگوں کے درد کو نہیں سمجھا، غریبوں کے دکھ کو پہچاننا اور مسلسل بارش کی وجہ سے کسانوں کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہم ان کے ڈیم پر گئے اور NDRF کے تحت کافی مدد فراہم بھی کی ہے۔ ہم ان کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ہم نے کسی سرکاری اسکیم کے لیے دلالوں کا سلسلہ نہیں رکھا ہے۔ GHMC کی ڈپٹی میئر سلتا شوبھن ریڈی نے کہا ہے کہ CM ریلیف فنڈ نے ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا جو بیماری میں مبتلا ہے اور علاج نہیں کروا سکتے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بڑے دل کے ساتھ ریاست کے عوام کو یقین دلایا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور CMRF کے چیک تقسیم کر کے ان کی مدد کر رہے تاکہ انہیں کسی قسم کی طبی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر تارناکہ میں ڈپٹی میئر کیمپ آفس میں TTUC کے ریاستی صدر موتے شوبھن ریڈی کے ساتھ CMRF کا چیک متاثرہ محمد ارشد کے حوالے کیا گیا ہے۔ ہفتے کے روز جے پور کے ایلیویٹڈ اجمیر روڈ پر سدرشن پورہ پلیا کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے بغیر ڈرائیور کی کار میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے والی گاڑی ایک کھڑی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی جس سے قریبی موٹر سائیکل سواروں کو حفاظت کے لیے بھاگنا پڑا۔ افراتفری کا منظر اس وقت ختم ہوا جب جلتی ہوئی کار سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ تاہم خوش قسمتی سے ٹریفک کی شدید آمد کے باوجود کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو گئے جس میں شدید لمحات کو دیکھا گیا جب موٹر سائیکل سواروں نے آگ کے قریب آتے دیکھ کر اپنی بائک چھوڑ دی۔ بہت سے لوگوں کو خطرے سے بچنے کے لیے اپنی گاڑیوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے جو صورتحال کے خوف اور الجھن کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کار کو مانسروور کے دیویا درشن اپارٹمنٹ کے رہنے والے جتیندر جگن چلا رہے تھے اور ایلیویٹڈ روڈ پر اترتے ہی اس نے گاڑی کے ایئر کنڈیشننگ یونٹ سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ فکر مند اس نے اپنے بھائی کو مشورہ کے لیے بلایا جس نے مشورہ دیا ہے کہ وہ ہیڈ کے نیچے چیک کرے۔ گاڑی سے باہر نکلنے اور بونٹ اٹھانے پر جتیندر نے دیکھا کہ انجن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ تیزی سے بھڑک گئی، کار کے ہینڈ بریک کو نقصان پہنچا اور ڈرائیور کے بغیر گاڑی بے قابو ہو کر ڈھلوان سے نیچے جا گری۔ اس نے سڑک کے کنارے ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد رکنے سے پہلے کھڑی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ شعلوں کی تیزی سے پھیلنے کے خاص طور پر مصروف علاقوں میں گاڑیوں کی خرابی کے خطرات کو واضح کیا۔ الارم بجنے کے فوراً بعد 22 گودام سے فائر ٹینڈر روانہ کیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے بتایا ہے کہ جب تک آگ بجھائی گئی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ آج جوکل کے MLA تھوٹا لکشمی کنتا راؤ منڈل مرکز کے سابق سرپنچ وید پٹیل کے گھر گئے اور انہیں دسہرہ کی مبارکباد دی۔ بعد ازاں انہوں نے مدنور مارکیٹ یارڈ میں سویا خرید سینٹر کا معائنہ کیا۔ ایڈیشنل کمشنر پدماوتی نے متعلقہ حکام کو عوامی آواز کی اپیلوں کو حل کرنے کے لیے پہل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر پدماوتی کے ساتھ ایڈیشنل کمشنر پدماوتی نے پیر کے روز GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عوامی خطاب میں مختلف مسائل کے حل کے لیے شہر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے لوگ تھے اور اس کے علاوہ وینو گوپال ریڈی ایڈیشنل CP گنگادھر نے درخواست قبول کی۔ تجویز ہے کہ متعلقہ RGs کو متعلقہ حکام کے حوالے کیا جائے اور ان کے حل کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر پدماوتی نے کہا ہے کہ تجویز دی گئی ہے کہ متعلقہ حکام کو پبلک ریڈیو میں موصول ہونے والی اپیلوں کو حل کرنے کے لیے خصوصی پہل کرنی چاہیے۔ فون اور پروگرام کے ذریعے درخواستیں حل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو بھیجی گئی۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عوامی سماعت کے پروگرام میں 26 درخواستیں موصول ہوئی جن میں سے 12 ٹاؤن پلاننگ، 6 ٹیکس سیکشن، 2 CE مینٹیننس، 2 FA سیکشن، اسٹیٹ اور ایڈورٹائزمنٹس، ہیلتھ اور LWS کے لیے موصول ہوئی ہے۔ GHMC کے تحت 6 زونوں میں کل 52 درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کوکٹ پلی زون میں 25 موصول ہوئی ہے اور سکندرآباد زون میں 14، LB نگر زون میں 5، چار مینار زون میں 4 اور لنگم پلی میں 3 اور خیرآباد زون میں 1 درخواست موصول ہوئی ہے۔ جے گیتا ریڈی تجربہ کار کانگریس لیڈر، سابق وزیر، 3 بار MLA اور TPCC کے کارگزار صدر کو 19 اکتوبر 2024 بروز ہفتے کو تاریخی چار مینار پر 34ویں راجیو گاندھی یاترا یادگاری دن کے موقع پر سدھ بھون ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ آن جہانی شری راجیو گاندھی سابق وزیر اعظم اور کانگریس کے سابق صدر نے کانگریس پارٹی کا جھنڈا لہرایا اور 1990 میں 19 اکتوبر کو تاریخی چار مینار سے جڑواں شہروں میں اپنی یاترا کا آغاز کیا۔ راجیو گاندھی سدھ بھونا یاترا یادگاری کمیٹی گزشتہ 34 سالوں سے اس دن کو راجیو
राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगिरी दिन के तौर पर मनाती रही है और हर साल तारीखी चार मीनार पर एक प्रोग्राम का एहतमाम करती है और एक नामवर शख्सियत को सद्भावना अवार्ड से नवाजती है। पैनल में बी कमलाकर राव साबिक MLC और ए श्याम मोहन चेयरमैन TPCC सेल ने जय गीता रेड्डी का नाम इस साल सद्भावना अवार्ड से नवाजने के लिए मुंतखब किया है। हनुमंत राव सीनियर लीडर ने कहा, रिवंश रेड्डी ने कहा है कि हम राहुल गांधी के कहने के मुताबिक असेंबली में जात पात की मर्दमशुमारी को नाफिज करेंगे। नरेंद्र मोदी BC बन गए और 10 साल तक BC को नजरअंदाज किया। जात की मर्दमशुमारी की वजह से पंचायती इंतखाबात में ज्यादा अक्सरियत का इम्कान है। पार्टी रहनुमाओं से दरख्वास्त है कि वो अपने पास आने वाले कमजोर तबकों की तादाद को रजिस्टर करें। हमारी रियासत में जात पात की मर्दमशुमारी को नाफिज किया जाना चाहिए और तेलंगाना को पहले कपास के तौर पर मुनाकिद किया जाना चाहिए। हम देखेंगे कि कर्नाटक में भी जात पात की मर्दमशुमारी लागू होती है। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहूंगा और पार्टी की खिदमत करता रहूंगा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए कमेटी की तश्कील के ऐलान पर मधूल में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाते हुए 5 अफराद बशमूल खवातीन पर मुश्तमिल इंदिरम्मा कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर एजाजुद्दीन साबिका MPP मधूल ने 9 मुंतखबा इंदिरम्मा कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देते हुए मुस्तहिक अवाम तक इंदिरम्मा स्कीम को पहुँचाने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना सरकार की तरफ से इंदिरम्मा कमेटी फॉर्म करना बोलकर ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए। उसी ज़मन में आज मुधोल ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में आया और इस ग्राम सभा में मुधोल के पूरी अवाम तकरीबन हर जात के लोग आकर इस ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का निर्णय लिया है। इस निर्णय में सबकी राय से, सबकी मेजॉरिटी से आज 5 मेंबर का इंतखाब अमल में आया। 5 मेंबर को मुंतखब किया गया, जिसमें चिन्नक का डोकरा ग्रुप से वाबस्ता और एक बाबू SC से, सैनाथ BC और हमारे जनरल में इमरान खान साहब, ये 5 लोगों को महानंदा डोकरा ग्रुप से 5 लोगों को ग्राम पंचायत में मुधोल के अवाम जिसको मेजॉरिटी के तौर पर मेजॉरिटी बताए उनको। पेरिस फ्रांस में मुनक़िदा 2024 के ओलंपिक खेलों के तमगे जीतने वालों को वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजित पवार ने चेक और स्विनर्स से नवाजा है। खिलाड़ियों को आज सहादरी गेस्ट हाउस में खुशामदीद किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक, महकमा खेल के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी OP गुप्ता, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस के कमिश्नर सूरज मानधारे मौजूद रहे। स्वप्नल कसाले, जिन्होंने पेरिस फ्रांस में होने वाले ओलंपिक खेलों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के ज़ैली ज़मरे में कांसे का तमगा जीता, और सचिन खिलाड़ी, जिन्होंने पैरालंपिक खेलों के शॉट पुट ज़ैली ज़मरे में चांदी का तमगा जीता, और मिस्टर कोसाले के कोच दीपाली देश पांडे और मिस्टर खिलाड़ी के कोच अरविंद चौहान को एजाज़ से नवाजा गया। रियासती हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों और कोचों के लिए इनामी रकम में हालिया इजाफे के तनाजुर में पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में कांसे का तमगा जीतने वाले स्वप्नल कसाले को 2 करोड़ रुपए और उनके कोच दीपाली देश पांडे को इनाम दिया जाएगा। पैरा ओलंपिक का आउटडोर इवेंट में 20 लाख रुपए और चांदी का तमगा हासिल करने वाले सचिन खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए और उनके कोच अरविंद चौहान को 30 लाख रुपए का चेक और एक तख्ती से नवाजा गया। मंगल को मेलावरम के मुअज़्ज़िज़ MLA श्री वसांथा वेंकटा कृष्णा प्रसाद की सरगर्मियों की तफसीलात। एजाजी कानून साज श्री वसांथा कृष्णा प्रसाद मेलावरम मंडल में गांव के त्यौहार पंचायत हफ्तों में शिरकत करेंगे। एजाजी कानून साज श्री वसांथा कृष्णा प्रसाद गांव के त्यौहार में शिरकत करेंगे और सड़कों की तामीर के लिए भूमि पूजा करेंगे। गांव के त्यौहार के प्रोग्राम्स में तेलुगु देशम पार्टी के अरकान खानदान और NDA ग्रैंड अलायंस के कायदीन ने शिरकत की। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।